empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the public authorities, contain corruption, and make our democracy work for the people in the real sense. So as I think you all are aware of this, and since the Right to Information Act 2000 is involving dealing with the RTI related matters, and Pride has been organizing from time to time these kinds of workshops. But one such online training program for 2 days on good governance and transparency through RTI Act 2005 by National Productivity Council for the officials of Lok Sabha Secretariat was organized on 9th and 10th September 2021 also. Similarly, various workshops has been organized, but this time we have received a special request from the Information Cell to organize a lecture on RTI Act 2005 for the officers, so that those who are dealing with the RTI and as to advance their understanding of the provisions of the RTI Act 2005, and that is why we have issued a circular in this request that those who are working and dealing with the RTI should join, and we are really very happy that you have come here in large number. So Mr. K.G. Verma is a practicing lawyer and is an honorary president of the Institute of Good Governance, New Delhi, an organization conducting training programs on various topics including reservation in services, prevention of sexual harassment of women at workplace, conduct rules, disciplinary proceedings, right to information transparency, and many such. He has started his career as assistant professor in mathematics in Meerut University, and after that he resigned from there in 1982 and joined Government of India, Department of Family Welfare, where he looked after the policy of population control of the Government of India for about 5 years. After that, he was posted in the Department of Personnel and Training in the year 2001, where he looked after the policy of reservation in services and all matters relating to the Right to Information Act 2005 in the capacity of Deputy Secretary, Director and Joint Secretary. At the time of his retirement from the Government of India, he was Director of the Institute of Secretariat Training and Management, ISTM also, a premium institute of the Government of India. So from his profile, you can always make out that he has got rich experience of the subject. And now, without wasting much of the time, I will request sir to proceed and address our officers. Thank you, ma'am. सबको एक बार मेरा फिर से नमस्कार। यदि मैं हिंदी में बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलूंगा। देखिए, मैडम ने ही बता दिया कि आरटीआई एक्ट है किस लिए। भाई, डेमोक्रेसी बनाए रखनी है इस देश में, और डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? मेरा राज्य हो, सिटीजन का राज्य हो, सिटीजन्स को पता हो कि देश में सरकार कर क्या रही है, और जो सरकारी अधिकारी हैं वह अकाउंटेबल हों जनता के प्रति, सिटीजन्स के प्रति। और उस सब को पैदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। भारत कोई पहला देश नहीं है, बहुत बाद में आया है इसमें। तो कुछ देशों में तो बहुत पहले, शताब्दियों पहले इस तरह के प्रावधान हो चुके थे। और यदि मुझे ठीक ध्यान पड़ रहा है देश का नाम, स्वीडन में तो इतनी स्वतंत्रता है कि कुछ भी आप छुपा ही नहीं सकते, और वो शायद 18वीं शताब्दी में उनका कानून लागू हुआ था। तो हमने बड़ी देर से शुरू किया है, पर बड़े सुदृढ़ तरह से किया है। देखिए, हमारा जो एक्ट है, मोटे तौर पे उसने ये बताया कि क्या क्या अधिकार हैं लोगों के इंफॉर्मेशन के बारे में। ये बताया है कि भाई उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है एक सिटीजन के रूप में, और उस सूचना को देने के लिए एक सूचना तंत्र बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। संक्षेप में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, संक्षेप में ही हम इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले तो एक दो डेफिनेशंस की बात करता हूं मैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना कहां से मांगी जा सकती है, किससे ली जा सकती है, किन
ऑर्गेनाइजेशन से ली जा सकती है, यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत कौन से ऑर्गेनाइजेशंस कवर होती हैं। उसके लिए एक्ट कहता है, एक टर्म उसने इजाद की है, पब्लिक ऑथोरिटी, उसको डिफाइन किया है। और पब्लिक ऑथोरिटी का अर्थ बताया है, उसकी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो मेरी समझ में आया उसे कहता हूं। पब्लिक ऑथोरिटी का मतलब है गवर्नमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशन। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के हो सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस हो सकते हैं। और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट की डेफिनेशन में आते हों, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है ना स्टेट को, तो स्टेट का अर्थ है, जो कुछ अर्थ है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस कवर हो जाए वो सब पब्लिक ऑथोरिटी हैं। और जो पब्लिक ऑथोरिटी हैं वो सब विवश हैं आरटीआई एक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब मैंने स्टेट की बात की तो देखिए उसके कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है आरटीआई के संबंध में, नहीं किसी और संबंध में। स्टेट को डिफाइन करते वक्त उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक ये स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल्स जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे आरटीआई एक्ट से कवर होते हैं। एक सवाल उठा कि एक प्राइवेट बैंक है, वह पब्लिक ऑथोरिटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जब पब्लिक ऑथोरिटी को डिफाइन किया है एक्ट ने, तो उसने कहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में हो या जिनको सरकार सब्सटेंशियली फाइनेंस करती हो, वो सब पब्लिक ऑथोरिटी माने जाएंगे। यानी कि वह सब आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। एक केरल के कोऑपरेटिव बैंक के संबंध में सवाल उठा कि वह पब्लिक ऑथोरिटी है या नहीं है, वो आरटीआई एक्ट से कवर होता है या नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला उसमें दिया। उसने कहा कि साहब ये देखिएगा सब्सटेंशियली फाइनेंस करने का अर्थ क्या है। सवाल ये था कि भाई ये कोऑपरेटिव बैंक है, इसको कुछ सहायता मिल रही है सरकार से, मगर क्या उसकी वजह से इसको ये मान लिया जाए कि पब्लिक ऑथोरिटी है, आरटीआई एक्ट से कवर होता है। इसी पे विवेचना की है और इस निष्कर्ष पे पहुंची सुप्रीम कोर्ट कि फॉर्मूला ये अख्तियार कीजिएगा कि यदि सहायता ऐसी दी जा रही है कि उसको विड्रॉ करने से वह ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगा, it may not be possible for that organization to function if that financial aid is withdrawn, then it would be treated to be having substantial finances from the government. जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था एडेड स्कूल्स का, वहां पे क्या है 95% फंड्स गवर्नमेंट से आती हैं, सारी सैलरी वो पे करते हैं, केवल 5% उनको अपने आप जनरेट करना होता है। If you withdraw that 95%, the schools would be closed. So it is financially, it is substantially financed and therefore they fall under the ambit of RTI Act. ऐसा ही उस बैंक के बारे में उन्होंने कहा, अरे भाई इसे आपने एक बार सरकार ने बैंक को 5 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद में कुछ नहीं दे रहा है, 5 करोड़ रुपया अब ले लो आप अपने यहां से, ये ठप नहीं होने का। इट इज नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। तो जब कभी आप आरटीआई एक्ट कहीं से मांग रहे हैं, लेने की बात नहीं कर रहा हूं कि अब आपको देनी होगी तो उसकी बात अलग करता हूं, बट इफ यू वांट टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू सी वेदर इट इज पब्लिक ऑथोरिटी और नॉट, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसे देखिए, वो है तो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वो बाध्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस, या तो डायरेक्टली कंट्रोल है गवर्नमेंट का, फाइनेंस नहीं कर रही गवर्नमेंट, बट दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय देम, या सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। देखिए यूनिवर्सिटीज के बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत खुली है ना आजकल, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पब्लिक ऑथोरिटी है या नहीं है, बहुधा पूछा जाता है ये सवाल। जब उन्होंने पब्लिक ऑथोरिटी को डिफाइन किया है तो कहा है उन्होंने, एक्ट कहता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर or has been created by a law passed by the parliament or state legislature, they all shall fall within the definition of public authority. यानी कि किसी कानून से कोई बना दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको मालूम है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, एक्ट ऑफ या तो पार्लियामेंट से बनेगी या एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से बनेगी, कोई स्टेट बनाएगा। सो दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और बाय लॉ पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर। इसलिए ये सारे के सारे डेफिनेशन में आते हैं पब्लिक ऑथोरिटी के, इसलिए वो सब बाध्य हैं आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसको यहीं छोड़ता हूं, बहुत इस पर चर्चा नहीं करते। कुछ जी देखिए, वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मोटे तौर पर, सरकारी कुछ सोसाइटी सरकारी भी होती है जो रजिस्टर्ड है, वहां पे सारी की सारी फंडिंग वहां से सरकार से होती है और मोटे तौर पे कंट्रोल वहां पे सरकार का होता है, इसलिए वो पब्लिक ऑथोरिटी होगी, वो देंगे। मगर जैसे मान लीजिए, आपका सवाल मान लीजिए ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट है, कहीं कोई सहायता नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, किसी एक्ट ने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे क्रिएट नहीं किया, रजिस्टर लोगों ने अपने आप बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन को और उसे रजिस्टर करा दिया, वह पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, उससे आप आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कह रहा हूं, आपके एनजीओज टाइप की चीजें। एक ये जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है और डायरेक्टली फाइनेंस्ड, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, दोज विल बी पब्लिक ऑथोरिटीज। बट दोज हु आर प्राइवेट इन नेचर, नॉट आर बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट directly or indirectly, those would not fall within the definition of public authority, and we won't be able to get information under RTI Act from such organizations. Is it okay, sir? Sir, आप PPT presentation देंगे या is it okay? It is okay, ma'am. It is okay. अच्छा, पब्लिक ऑथोरिटी के बाद में एक बेसिक चीज क्या है साहब हमारे आरटीआई एक्ट में? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखने में तो लग रहा है भाई इंफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन दीजिएगा आप। एक्ट डिफाइन करता है, बड़ी मोटी डेफिनेशन दी है उसने, इतनी भारी डेफिनेशन दी है कि उसे उठाना ही मुश्किल है। It says any material in any form is information. Any material in any form is information. Any material, आपके सामने जो मेज रखी हुई है, बेंच रखी हुई है, या वो कुर्सी जिस पे आप बैठे हुए हैं, मटेरियल है ना, इंफॉर्मेशन है। यहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुकलेट खरीदी, ये नोटबुक खरीदी है, मटेरियल है ना, इट इज इंफॉर्मेशन। कागज पे लिखी हुई चीज ही इंफॉर्मेशन नहीं है। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इज इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन देते वक्त वो 3-4 लाइन में दिए उन्होंने, मगर जो बाद में दिया है डेफिनेशन तो इतनी ही है, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इज इंफॉर्मेशन। और आगे क्या कहता है वो? इंक्लूडिंग द फॉलोइंग थिंग्स।
यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं उसने। इंक्लूसिव है डेफिनेशन, इसका कोई सीमा नहीं है, बहुत विस्तृत है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, अच्छा, और क्लैरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये कह रहा है एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं वो कहेंगे जो कंप्यूटर में लिखी हुई चीज है वो तो मटेरियल फॉर्म में है ही नहीं, वो तो वर्चुअल चीज है। अब मटेरियल तो ऐसा होना चाहिए ना जो स्पेस कुछ कवर करता हो, जिसके अंदर कुछ भार हो। यही पढ़ा था ना हमने कक्षा 6 में। उस चीज को क्लियर करते हुए एक्ट कहता है कि इट वुड इंक्लूड एनी मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कंप्यूटर में जो आपने कर रखा है वो भी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आएगा। देखिए, इंफॉर्मेशन हुआ और उसके साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट क्या है? जो इंफॉर्मेशन तो देखा हमने कि भाई बड़ा विस्तृत है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? वो ये है कि जो भी किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास में इंफॉर्मेशन है उसको लेने का अधिकार हर सिटीजन के पास में है। और क्या क्या चीजें, वो देखिए, इंफॉर्मेशन लिखित में मांग ले, वो मटेरियल का सैंपल मांग ले, वो मॉडल मांग ले। और यदि मैं इसमें से किताब में से पढ़ूं ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को छोड़ करके देखिए, डेफिनेशंस उसने आपको पता है सेक्शन 2 में दे रखी हैं। तो मैं ये जे, क्लोज जे, राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। किस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप बाध्य होंगे पब्लिक अथॉरिटी के रूप में? जो आपके पास में है, which is held by you or which is under the control of your organization। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपसे रिलेटेड हो, मगर यू डू नॉट होल्ड दैट इंफॉर्मेशन। वो मटेरियल आपके पास में है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, बड़ा मोटा, रोज आप करते हैं इसका सरकार में। एक फाइल है आपके पास में, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है ना आपका एक। कुछ फाइल को आप 1 साल में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कैजुअल लीव की एप्लीकेशन 1 साल बाद ही फाड़ कर फेंक देते हैं ना। कुछ है 3 साल रखते हैं, कुछ का रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है 10 साल, कुछ जो है परमानेंट रिकॉर्ड है। वो फाइल जो आपने डिस्ट्रॉय कर दी, डू यू होल्ड दैट नाउ और योर पब्लिक अथॉरिटी होल्ड्स दैट? You do not hold that. So nobody would have a right to have information about that, जो आपने destroy कर दिया, जो आपके पास में नहीं है। So the information which is held by you, your public authority, or which is under the control of the public authority। Control of public authority का एक उदाहरण देखिए। सारी इंफॉर्मेशन, सारी फाइलें आप अपने पास में नहीं रखते। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पे भेज देते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज का वहीं पे चला जाता है ना, मगर कंट्रोल उसके ऊपर किसका रहता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका कंट्रोल है। सो स्टिल इट इज बीइंग हेल्ड बाय यू इनडायरेक्टली। सो यू कांट से कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। कई बार बड़े सवाल उठे हैं इस मामले में कि भाई फाइल डिस्ट्रॉय कर दी गई, आपने कैसे डिस्ट्रॉय कर दी? कमीशन ने उसके बारे में कहा कि भाई देखिए, फाइल तो डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी, मगर हर ऑर्गेनाइजेशन अब इस चीज का ध्यान रखे कि जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है उसके मुताबिक करे उसको डिस्ट्रॉय और उसका रिकॉर्ड रखे।
आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दी है और लीगली डिस्ट्रॉय की है, देन यू डू नॉट हैव एनी liability to supply that information to under RTI Act. So the information which is held by the organization, by the public authority, or which is under the control of the public authority, a citizen has a right to have that information, and we are bound to give that information, to furnish that information to any citizen. इस राइट टू इंफॉर्मेशन में और क्या क्या इंक्लूडेड है साहब देखिए, इट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स। इस पे मुझे एक घटना याद आ रही है साहब देखिए, मैं खड़े होकर के बात करना चाहता हूं पर मुझे पता है कि फिर मेरी आवाज नहीं जाएगी आप तक। कॉलर माइक हो तो देखिए मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ स्मार्ट हो गया, खड़ा हो सकता हूँ। प्लीज प्लीज। IIMs को तो हम सब जानते हैं ना जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पहले तो 5 ही हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन एक IIM के पास में गई कि आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट योर वर्क। कहा ना इसने, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। और क्या वर्क वो इंस्पेक्ट करना चाहता है? आई शुड बी अलाउड टू अटेंड द क्लासेस। मुझे इंस्पेक्ट करना है आपकी क्लासेस को, वर्क को क्लास को करना है। हो जाएगा, लगाते हैं तो मैं देख लूंगा उसे, जैसे बोले आ जाएगा ना। मैं सब नीचे आऊंगा, नजदीकी बढ़ाऊंगा ना अपनी। अब IIM से सारी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल सकती, मगर जिस विधान के अनुसार, जिस कानून के अनुसार ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दी गई, उसमें कुछ शर्तें रखी गई कि ये इंफॉर्मेशन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इतने दिन में सरकार को सप्लाई करते रहेंगे। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट द लॉ सेज दैट दे वुड हैव टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, सम स्पेसिफिक, नॉट ऑल इंफॉर्मेशन, but some of the information would have to be supplied by these private organizations to the government. Such information which is available to the government under any act, कानून में विधान किया हुआ है कि आपको ये देनी पड़ेगी, that can be held by the citizens. मगर किससे? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट से, उस ऑफिस से जिसके पास में वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार को देनी होती है, कानून के तहत वो बाध्य है। सो दोज इंफॉर्मेशंस आर आल्सो अवेलेबल टू अस अंडर द RTI एक्ट, बट वी हैव टू हैव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की ये भाई कानून है कि वो देंगे, वो नहीं दे रहे हैं तो गलती गवर्नमेंट की है, क्यों नहीं ले पा रही है? आप लीजिए और मुझे दीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में नहीं है ये। राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक ऑथोरिटी। मैं इंस्पेक्शन ऑफ वर्क की बात कर रहा था और IIM का उदाहरण दे रहा था। तो एक RTI एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन डाली कि साहब मुझे क्लास को इंस्पेक्ट करने का अधिकार दिया जाए, मैं क्लास में बैठूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा। और साहब वो 10,000 रुपये महीना
फीस ले रहा है, एक लेक्चर की फीस जो है कम से कम इतनी ही बैठेगी, क्योंकि 5 दिन में तो एक लेक्चर होता है वहां पे IIM में। अब उसे दे दे क्या ये अधिकार? कोर्ट कहती है कि भाई ये तो आप जो है अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, ये राइट नहीं है आपका, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। इंस्पेक्शन जो है, आप वर्क का इंस्पेक्शन, और इसका वर्क का इंस्पेक्शन का अर्थ क्या मोटे तौर पर? अरे भाई आप CPW ने बिल्डिंग लगाई, उसमें मटेरियल ठीक लगाया या नहीं लगाया, आप सैंपल मांगेंगे भाई इस दीवार का 1 फीट बाई 1 फीट और जितनी गहराई है उतना काट करके मुझे दे दो, मैं उसे इंस्पेक्ट करूंगा, मैं देखूंगा लेबोरेटरीज में जचवा करके। और उसके साथ में भी शर्तें हैं कि आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट देनी पड़ेगी कि ताकि उसे नॉर्मल, मान लीजिए आपकी इस बिल्डिंग में कोई मांगे कि इसका सैंपल दे दो साहब, उसे रिपेयर उसी शेप में लाने के लिए हो सकता है 1 करोड़ रुपया लगाना पड़े आपको, तो 1 करोड़ रुपया दीजिए और ले जाइए सैंपल। तो जो ये है, जो IIM से मांगा गया, उसके बारे में कोर्ट का ये डिसीजन रहा कि नो, ही डज नॉट हैव दिस राइट टू इंस्पेक्शन, राइट टू इंस्पेक्शन डज नॉट इंक्लूड सच थिंग्स, इट इज समथिंग एल्स। वर्क जो है, वर्क आप देखिए वर्क क्या है, वर्क ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर्स बोल वर्क मान लें। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, और ये तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं कि भाई ये फाइल देखना चाहता हूं मैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और आपके रूल्स में भी दे रखा है कि साहब 1 घंटे तक तो आप कुछ नहीं चार्ज करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा देखता है तो 5 रुपए लेंगे, जिसे लेते हुए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आप कहते हैं 5 घंटे इंस्पेक्ट कर, भाई पैसे कुछ मत बता देना 1 ही घंटा किया था। अच्छा, दूसरा, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सैंपल्स बनाने पड़ेंगे, शर्त क्या है, राइट, वो क्या है, द इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड और कंट्रोल बाय इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। आपने जब बनाया ही नहीं है तो यू डू नॉट होल्ड दैट। सैंपल्स आपने बना रखे हैं, आपके पास में इस तरह का विधान है तो देंगे उसको सैंपल को, मगर जिसके सैंपल ही नहीं बनाए हैं तो वो नहीं दिया जा सकता। Obtaining information in electronic mode where such information is stored in a computer, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आप महसूस करते हैं कि यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने लगूंगा तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कागज ही उठाने मुश्किल है। आप नहीं कर रहे हैं, डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं। You have taken a decision that you shall not convert that into electronic form. ऐसे इंफॉर्मेशन को ये नहीं मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं मांगे सकते। जो आपने स्टोर किया हुआ है, अच्छा जो आपने नहीं किया गलती से या ठीक, उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता पब्लिक अथॉरिटी को कि आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिएगा। कंडीशन क्या की है इसने, इफ इट इज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑलरेडी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तब आप उसे देने के लिए बाध्य होंगे। हाँ जी, कोई आदमी जेल में बैठा है, हाँ जी, वहाँ से एक एप्लीकेशन भेजता है कि मुझे आपके रजिस्टर चेक करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उसका पर्पस डॉक्यूमेंट का नहीं है, हाँ वो जी, जेल से बाहर आना चाहता है। हाँ जी, हाँ उस जी। केस में हम क्या करेंगे? देखिए ये तो तय करेगा जेल वाला कि उसे छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। जी जी, आप तो उसे इनवाइट कर लीजिएगा, आप जो है आमंत्रित है महाशय, और इंस्पेक्ट कीजिए। ओके। अब पुलिस उसे छोड़े तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा। और एक चीज और मैं सलाह दूंगा, साथ में ये जरूर लिखिएगा कि आने जाने का खर्चा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। राइट। नहीं तो ऐसे भी हुए हैं केसेस जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आपने तो मुझे बुलाया था, मैं अपने आप थोड़ी आया हूं। तो जरूर लिखिए आप अपने, जब आप उनसे कह रहे हैं कि भाई यू आर इनवाइटेड टू इंस्पेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स, बट नो टीएडी वुड बी गिवन टू यू फॉर दैट। अपने खर्चे पे आइए, अपने खर्चे पे जाइएगा। पुलिस आने दे तो आइए, नहीं आने दी तो मैं पुलिस का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं हूं मैं। एक तरह से एब्सोल्यूट राइट हो गया सर, ये तो है जी? एब्सोल्यूट राइट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ, और हम उसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे। भाई देखिए, मान लीजिए एक आदमी मरने से पहले लिख के चला जाए
कि मेरे मरने के बाद में मुझे इंस्पेक्ट करा देना ये डॉक्यूमेंट। एब्सोल्यूट राइट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन उसका। अब मरे हुए आदमी को कैसे इंस्पेक्ट कराएं? जो पुलिस में के बार्स के पीछे है, उसके एब्सोल्यूट राइट्स को भाई ये जो है कोर्ट तय कर ले कि भाई कैसे देना है। मुझे तो इतना ही पता है कि भाई आइए आप रिस्पेक्ट कर लीजिए। सर मेरा सिर्फ इतना पूछना था हाँ जी। कि जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो उसकी भी एक्सेप्शन है। हाँ जी, तो right- एग्जैक्टली यस। So certainly it will have some हाँ। certain exceptions. सॉरी, Subject एक to चीज मैं certain आपको बताऊं, limitations. देखिए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया, इससे आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा, जो है ना जी, इस पे यही वाला बिल्कुल इस पे देखिए, जो सेक्शन 3 है हमारा, वो बताता है कि आरटीआई एक्ट क्या अधिकार दे रहा है साहब, राइट क्या है। और देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी लैंग्वेज ले रखी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। शुरू कहां से हो रहा है जी? सब्जेक्ट टू। इसका मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और कोई भी राइट एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता। जीने तक का अधिकार भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है। कानून के प्रक्रिया के मुताबिक एक आदमी को फांसी दी जा सकती है। Nobody has absolute right to live. So RTI Act भी जो है, right to information जो है, it is not absolute, it is not fundamental to that extent. It is treated as fundamental right. It is part of knowing the things. तो सब it is subject to certain clauses. और खास तौर से देखिए ना, इसी एक्ट का सेक्शन 8 कितने सारे एक्सेप्शंस देता है। सेक्शन 24 वो कहता है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू ही नहीं होगा। तो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। ठीक है साहब, चलिए ये मोटे तौर पर एक आध डेफिनेशन थोड़ा बाद में जहां जरूरत पड़ेगी, यदि वहां तक पहुंच पाए हम तो तब करूंगा। पर ये डेफिनेशंस ऐसी थी जिनको समझना और जानना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा। हाँ जी, सर एक छोटा सा और, हाँ जी, आपने इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन क्या है? हाँ जी। क्या हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है, कोई ब्रांच से हमें रिप्लाई मिलता है, this thing does not cover under the definition of information. Do we have any right to interpret that section? Is it not the function of the court and CIC? Can public authority say like this? हाँ, देखिए इस पे अभी सेक्शन 5 पे आएंगे ना हम, जी। तब देखते हैं। देखिए मैं बताना भूल जाऊं तो आप कहिएगा सेक्शन 5 पे जरूर। देखिए इंफॉर्मेशन मोटे तौर पे जो हमने पहले कहा कि द इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, दैट हैज टू बी सप्लाइड। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। मैंने कुछ उदाहरण दिया, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक आपने कहा कि भाई वो इंफॉर्मेशन जो है किसी और ने दी, उसे इंटरप्रेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन है मैं उसे देने के लिए बाध्य हूं। मुझे कोई इंटरप्रेट नहीं करना है उसे। कोई डॉक्यूमेंट, देखिए शुरू में क्या हुआ, जो आप तो बहुत सारे रिसर्च सर्विसेज के हैं ना लोग जी, यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशंस आने लगी। एक आदमी रिसर्च कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कहां कहां क्या क्या भाषण दिए थे और उनका सब क्या अर्थ क्या है, वहां उस समय क्या कहना चाह रहे थे, मान लीजिए। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, भाई अभी ने तो कंट्रोल किया हुआ ना उस सबको। अब वो कह रहा है इंटरप्रेट कर दीजिए इसे। भाई मेरा काम इंटरप्रेट करना नहीं है,
मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है। आपको उनका कौन सा भाषण दिया यदि मेरे पास में कंट्रोल में है तो मैं उसे दे दूंगा आपको। इंटरप्रिटेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन आरटीआई एक्ट, कुछ नहीं करना है मुझे। कई बार कुछ इंफॉर्मेशन आई जिसके ऊपर आज भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। एक फॉर्मेट बना करके दे दिया एक आदमी ने, उसमें 20 कॉलम्स बनाए, 50 रोज बनाई कि साहब इसे भर दीजिए आप किसी किताब के आधार पे कि ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और वे क्या कर रहे हैं आप? यू आर क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन। ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू क्रिएट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट माई वर्क एज CPIU। मेरे पास में तो जो इंफॉर्मेशन है उसे दे सकता हूं मैं, इंटरप्रिटेशन तो करना मुझे आता ही नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। CPIO के रूप में मैं कितना जानता हूं, भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये आपने मांगी, ये मैंने दे दी। अब ये आप पूछे कि इसका अर्थ क्या है, भाई ये मुझे नहीं मालूम, ये तो तुम पढ़ करके देख लो। तो आई एम नॉट सपोज टू इंटरप्रेट एनीथिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जी साहब। कि इंफॉर्मेशन को एक रिसर्च फॉर्म में सीख करता है एप्लीकेंट, हाँ जी। और हमें उसको जो रिस्पॉन्ड करना होता है, एग्जैक्टली आपका पॉइंट तो मैं समझ गया, उसमें किस सेक्शन और धारा का इंटरप्रिटेशन के साथ हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और नंबर 2, अगर वेबसाइट में या पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसको भी वो मांगता है और हम उसको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद वो फिर बोलता है कि नहीं हमें नहीं मिल रहा, हमें हार्ड कॉपी दिया जाए, उस केस में हमारा रिस्पांस किस रूप में होगा? धन्यवाद। बड़ा एडवांस में सवाल पूछ लिया, पर अभी कहूंगा मैं, छोटी सी तो पीरियड है। तो देखिए पहले दूसरे सवाल का जवाब कि उसने जो है इंफॉर्मेशन क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन को एक अपने रिसर्च नोट फॉर्म में एक तैयार मसौदे के रूप में मांगा, जो मसौदे के रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ जी। नेचुरली वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करवा रहा है हमसे, ये हाँ तो हम जी। समझ गए, हाँ जी। पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दैट एप्लीकेशन साइटिंग द रेलेवेंट सेक्शन? जी 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 जी। एक एक्सट्रीम केस बताऊं मैं, CIC का एक डिसीजन आया, उसमें उसने कहा कि यदि मुझसे कोई ये पूछता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं उसे ये लिख करके नहीं दूंगा। CIC ने कहा कि उसे ये लिख के देने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं नोटिफिकेशन की कॉपी निकालूंगा और उसकी कॉपी सप्लाई करूंगा। इंफॉर्मेशन वो है, मैं ये डॉक्यूमेंट, मुझे तो क्या मटेरियल देना है ना, मतलब ये एक ज्यादा बड़ा खींचने का तरीका है, मगर वो इर्रिलेवेंट नहीं है। वो कह रहा है कि भाई देखिए इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मगर यदि मैं डेफिनेशन से जाऊं तो डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं तो मटेरियल दूंगा, और मटेरियल वो नोटिफिकेशन ही तो होगा जिसके अंदर वो दिया गया गजट नोटिफिकेशन कि ये प्रधानमंत्री हैं। तो जो ये कह रहा है कि भाई आप उसको इंटरप्रेट कर दीजिए या ये बताइए या किस तरह से कीजिए, रिसर्च कीजिए, नो, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। एंड आई टेल यू, देयर इज अ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. It is a small book running into 24 or 25 pages. They have very clearly said in that that you are not required to interpret anything. You are not required to give information in the format. एक सेक्शन का बात करूंगा जिसमें सरकार, इसमें एक्ट कहता है, टू बी प्रेसाइज, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 9, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन in the form in which it is sought, but it may be denied in that form if it disproportionately diverts the resources of the public authority. अब यहाँ पे CIC ने एक बार कहा कि भाई देखिए इसमें कह रखा है कि जिस फॉर्म में मांग रहा है इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में देनी पड़ेगी। DOPT ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन निकाला है, उसने कहा फॉर्म का अर्थ फॉर्मेट नहीं है,
फॉर्म का अर्थ है वो लिखित में मांग रहा है, कागज पे मांग रहा है तो मैं लिखित में दूंगा। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांग रहा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूंगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उसके लिए टेबल बना करके दूंगा और रिसर्च करूंगा। तो इंफॉर्मेशन फॉर्म और फॉर्मेट दोनों में अंतर कीजिए। एक सवाल था ना अभी कि भाई कोई ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने दे दिया उसे, सेक्शन 7(9) वहां पे इन्वोक करना होगा आपको। जिस फॉर्म में वो मांग रहा है आप उसी फॉर्म में देंगे उसे। कब मना कर सकते हैं? जब इट इज डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्टिंग योर रिसोर्सेज, तब आप मना कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बताया कि ये भाई गांव में, हिंदुस्तान के गांवों में आज भी बिजली नहीं आती है और कंप्यूटर तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल देखा ही नहीं है। दिल्ली में बैठ करके हमें बड़ा भ्रम है कि सबके हाथ में है ये। तो यदि वह मांग रहा है लिखित में, कागज के फॉर्म में, तो उसे दीजिए। सर ये वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करने का सेक्शन है, जैसे कोई जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इफ इट डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्स द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी। अभी थोड़ी देर पहले आप ही के जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे वहां पे, वो भी किसी कोई लेक्चर ले रहे हैं अभी। वो कह रहे थे यही कि भाई हमारे पास में एक आरटीआई एप्लीकेशन आई है कि 1947 से लेकर अब तक जितने एक्ट बने हैं उन सब की फाइल दे दीजिए हमें और वो दे दीजिए। अरे इट इज, उन सबको देंगे तो क्या लगेगा? पूरा का पूरा आप सारे साल आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वही काम करता रहेगा। इट इज डाइवर्टिंग द रिसोर्सेज डिसप्रोपोर्शनेटली। आई वोंट बी एबल टू सप्लाई दैट इन दैट फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा? आइए, इंस्पेक्शन का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन में इंस्पेक्शन भी है ना। डू कम हियर, आई एम गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन। आप जो है अपने दिन लगाइएगा। पहले 1 घंटे का मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, उसके बाद में हर घंटे का 5 रुपए चार्ज करूंगा। बैठिए आप 6 साल तक और इंस्पेक्ट कीजिए उसे। तो जो वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं लोग, उसको हल करने का तरीका जो है उसने 7(9) में। देखिए सब, इंफॉर्मेशन जो है उसके डिसेमिनेशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सरकार या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑथोरिटी अपने आप उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए, जिसे हम कह रहे हैं सो मोटो डिस्क्लोजर। और सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने की जब बात की गई है तो ये एक्ट इसी बात को कहता है कि हर पब्लिक ऑथोरिटी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने आप जनता को सप्लाई करेगी और इस तरह से सप्लाई करेगी कि किसी को आरटीआई एप्लीकेशन डालने की जरूरत ही ना पड़े। और उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैटलॉग कीजिए, इंडेक्स कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन को आप विभिन्न माध्यमों पे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे पब्लिश कराना है तो पब्लिश कराइए, और गांव की स्थिति है जहां पे और कुछ नहीं है तो बोर्ड पे लगाइए, लिखिए, दीजिए। दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी सप्लाइड सो मोटो, बिना किसी के मांगे सबको देनी है। और ये चॉइस नहीं है, ऐसा करने का आदेश है, पर दुर्भाग्य से वो हो नहीं पा रहा है। देखिए मैं उस पे सेक्शन 4 पे आता हूं। यदि ये काम हो जाए तो आरटीआई का काम वास्तव में बड़ा कम हो जाएगा। जो एप्लीकेशंस आती हैं उनकी संख्या वास्तव में बहुत कम हो जाएगी, मगर ये भी बड़ा काम है। अच्छा, इसमें जो अभी तो ये लिखा हुआ है इतना, पर जब एक्ट को पढ़ेंगे तो उसने कहा सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एटसेट्रा, बट नाउ द टाइम हैज कम। अब तो 17 साल हो गए एक्ट को आए हुए। इतने दिन के बाद हम यदि ये कहें कि भाई हमें टाइम नहीं मिला या हमारे पास में पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा
कंप्यूटर वगैरह में डालने में लगता नहीं है, और सरकार अब इतनी गरीब रहने गई है 1947 की तरह से, तो वो हो जाना चाहिए। और आखिर सब लोगों को देखिए, हम इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एज नॉर्मल सिटीजन, तय करते हैं कि हमारा राजा कौन होगा यदि प्रधानमंत्री को आप राजा मान लें, और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना हर आदमी कि भाई वोट डालना है या नहीं डालना है, उनको देना तो किसी और को देना है या नहीं देना है, इन्होंने पिछले दिनों काम क्या किया है और वो काम संतुष्टकारी है या नहीं है, इस इंफॉर्मेशन से, भाषणों से पता नहीं चलता था। वो तो जो काम हुआ, आपके दफ्तरों में जो कागज रखे हुए उनसे पता लगता है। तो वो इंफॉर्मेशन आम आदमी के पास में पहुंचनी चाहिए। जो सुनो डिस्क्लोजर का मामला है, उसे कंप्यूटराइज कीजिए और वेबसाइट पे डालिए। ये तो क्लोज 1A था, और क्लोज 1B में उसने 17 आइटम्स दिए हैं, वो आपको सबको पता है कि खास तौर से ये इंफॉर्मेशन तो फौरन की दीजिए। एक आध को पढ़ के सुनो सब, देखिए, मैं आपको रिफ्रेश हो जाएगा। एवरी पब्लिक ऑथोरिटी शैल, साहब आप तो समझते हैं ना शैल का अर्थ क्या है, बाध्यकारी है ये, ऐसा नहीं है कि चॉइस है आपकी। शैल पब्लिश विद इन 120 days फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। 2005 में हो गया था इनेक्ट ये, उसके केवल 120 दिन, तो 120 दिन तो जरूर गुजर गए होंगे। क्या क्या पब्लिश करना है? द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, द प्रोसीजर followed in the decision making process including channels of super etc. ये 16 दिए इसने, और 17 में एक और किया, और कोई इंफॉर्मेशन which must subsequently be decided by the government। तो इसकी कोई, अरे ये जो है बाध्यकारी है, किया जाना चाहिए। एक शब्द देखिए, एक शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम अपने ऑफिसेज में, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर्स स्पीकिंग होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या है भाई? जो कुछ आप ऑर्डर पास कर रहे हैं उसमें उसके रीजन क्या है और क्या बैकग्राउंड है, किस लिए उन्हें दिया गया है, कोई किसी को कोई चीज दी गई है, कोई निर्णय लिया गया है, तो जिन लोगों के बारे में कोई निर्णय लिया गया है तो उनके पास में स्पीकिंग ऑर्डर पहुंचना चाहिए। यह आरटीआई एक्ट कहता है। यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर्स पास करने आरटीआई एक्ट के तहत, वो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ऑर्डर आज भी बहुत सारे पास हो रहे हैं ना कि इसको ये कर दिया। अब जैसे मान लीजिए ट्रांसफर किसी का हो रहा है, अरे भाई एक शब्द जरूर लिखिएगा, इन पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं। भाई रीजन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट है साहब, और कुछ नहीं, तो रीजन है ना कोई। तो जितने ऑर्डर्स पास होते हैं वो सारे के सारे, वो रीजन उस व्यक्ति को जरूर कम्युनिकेट होने चाहिए जिसके बारे में डिसीजन लिया गया है, जो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं और जो सीपीआईओ का रोल अदा कर रहे हैं या एपीलेट अथॉरिटी का रोल अदा कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि बड़े परेशान कर रखा है हमें, और ये भूल जाते हैं कि हम सिटीजन भी है, मेरा भी तो राइट है ये। और देखिए सीपीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी के रूप में आप कितने टाइम काम करते हैं भाई? कितने टाइम काम करते? कुल मिला के 8 घंटे होते ना दिन में, सप्ताह में 5 दिन। आरटीआई का काम 1 घंटे रोज हो जाता होगा, और आपकी जिंदगी वो जो 40 साल का स्पैन है वो नहीं है, पैदा होने से लेकर के भगवान के घर तक जाने वाला टाइम है, उसमें आप सिटीजन जरूर बने रहते हैं। और जब आप एम्प्लॉई हैं तब भी सिटीजन है, तब भी आपका राइट है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ती है।
तो आरटीआई एक्ट ऐसा नहीं है कि आपको परेशान कर रहा है, आपको फायदा भी पहुंचा रहा है। ये बिल्कुल कड़वी दवा है। जो पीने वाला बच्चा है वो मचल रहा है कि नहीं पीऊंगा मां बेचारी परेशान है कि ये मर जाएगा मेरा बच्चा, वो पिलाने की कोशिश कर रहा है और बच्चा मना कर रहा है। क्या करे उसमें, मां जबरदस्ती पिलाएगी ना। ये एक्ट बस यही काम कर रहा है कि हम सीपीआईयू के रूप में या अपीलेट अथॉरिटी के रूप में इसे बड़ी कड़वी दवाई मान करके चल रहे हैं। हमारे हित में है, देश के हित में है, सब लोगों के हित में। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं साहब, घटना। आप कहेंगे डाइवर्ट कर रहा हूं। मैंने बताया कि मैं आरटीआई एक्ट देख रहा था। नए एक ऑफिसर रिटायर हुए थे। नए ऑफिसर नहीं, रिटायरमेंट उनका नया था। उनकी कुछ समस्याएं थी। वो हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब के पास, सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुआ तो सेक्रेटरी से ही बात करेगा ना। उनके पास में गया कि भैया ये चाहिए था मुझे, मैं किसी तरह से करवा दो ये काम। कि अब उन्होंने कहा भी वो केजी वर्मा नाम का एक वो है हमारा ऑफिसर, उसके पास चले जाओ तुम, वो तुम्हें सलाह दे देगा। अब इसमें सलाह देनी क्या होती है, सिंपली मैंने बताया कि साहब आरटीआई में आप डाल लीजिएगा, व्यवस्था आपको देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो करीब 3 महीने बाद मेरे पास में वापस लौट के आए। उन्होंने कहा दिस एक्ट हैज डन समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कि जब मैं सरकार में था, यदि मैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में, मैं 5 साल में भी कलेक्ट नहीं कर सकता था और शायद कभी नहीं कर सकता था। बट इन 3 months एवरीथिंग इज इन माई हैंड्स एंड नाउ आई शैल फाइट फॉर माई राइट्स। तो इसने गजब किया है। पहले तो होता ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आज भी है, वो खत्म नहीं हुआ है, इसमें जिक्र भी है इस एक्ट का। उसमें होता क्या था कि एक उदाहरण, किसी एसोसिएशन बना लेते हैं ना, उसके कोई सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए, और उन्होंने एक फाइल का जिक्र कर दिया। सरकारी नौकरी में थे, सेक्रेटरीट में पोस्टेड थे, फाइलें उनके नजर से गुजरती थी, उन्होंने कोट कर दिया। आरटीआई एक्ट तब तक नहीं आया था। उनको चार्जशीट इशू कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता था ना कि आप ऐसी कोई चीज देख भी नहीं सकते जिससे आपका संबंध नहीं है, उसे देखना भी अपराध है, और आपने तो कोट कर दिया। वो बाद में आरटीआई एक्ट आया तो उसके तहत उसकी जान बची, वरना पता लगता है कि उसे जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इतना भय का वातावरण था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कि आप बोल ही नहीं सकते थे कुछ। वो सारी चीजें अब हमें मिली है, इससे बहुत बड़ा राइट मिला है, उसे इग्नोर ना करें हम, और ये कह करके कि हम परेशान हैं, इसको डाइल्यूट ना होने दें, अपने हित में डाइल्यूट ना होने दें। ठीक है जी, मैं सेक्शन 4 पे बहुत चर्चा नहीं करता, बहुत लंबा चैप्टर है वो सेक्शन है। सेक्शन 5, सेक्शन 5 कहता है कि कहीं से इंफॉर्मेशन लेने का सिस्टम क्या होगा, कोई सिस्टम तो क्रिएट कीजिए। तो सेक्शन 5 क्रिएट्स ए सिस्टम ऑफ मशीनरी, मैकेनिज्म नहीं, मशीनरी क्रिएट कर रहा है। और क्या मशीनरी क्रिएट की, वो कहता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल हैव एज मेनी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एज द नीड में भी। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है जितने चाहे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नॉमिनेट करेगा, बनाएगा, डिक्लेयर करेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पब्लिक अथॉरिटी करेगा, बाध्यकारी है। और जरूरी नहीं है एक ही हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट इट शुड कवर एवरी यूनिट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। 10 यूनिट्स के लिए आप एक बना दीजिए या 10 यूनिट्स के लिए अलग अलग आप 10 बना लीजिएगा, मगर आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह रहे हैं उसे, स्टेट गवर्नमेंट के तहत है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह रहे हैं, हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह लेते हैं। वह बाध्यकारी है,
हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए। देखिए, जिस आदमी को कह दिया गया कि आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, किसके तहत बन रहे हैं आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? एक इंस्टीट्यूट के तहत बन रहे हैं। आपकी पोजीशन स्टैट्यूटरी है, इंस्टीट्यूट ने बनाई ना आपकी पोजीशन। कई बार सवाल उठता है कि एक आदमी कहता है दूसरे से, अपने जूनियर से कहता है कि आके कि मैंने ये अप्रूव कर दिया और दे दीजिए इंफॉर्मेशन। नो, इट इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु हैज ए राइट टू गिव इंफॉर्मेशन एंड नन एल्स। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वो खत्म नहीं हुआ है। यदि कोई और दूसरा आदमी दे रहा है तो अपराध कर रहा है। तो ये मत डेलीगेट मत कीजिएगा और डेलीगेशन एक्सेप्ट भी मत कीजिएगा। भाई मुझसे दिलवाना चाहते हैं, प्लीज डिक्लेयर मी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टैट्यूटरी पोजीशन है और जितने चाहें उतने बनाइएगा आप, सारी यूनिट्स उसमें कवर हो जानी चाहिए। एक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का बनाने की बात हो गई। इसके अलावा एक पोजीशन और भी बनाता है, सबसेक्शन 2, 5 का सबसेक्शन 2, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो क्या है साहब? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी का आइडिया हो कि भाई मोटे तौर पे उसे सुन करके क्या लगता है कि क्या होगा वो? Assistant to the public information officer, but no, he is not. और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, वो बाहर होता है। एक्ट कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप अपना एक अधिकारी रखेंगे जिसका काम एप्लीकेशंस, आरटीआई एप्लीकेशन स्वीकार करना, फीस स्वीकार करना या अपील स्वीकार करना और उसको ट्रांसफर करना सीपीआईओ को या अपीलेट अथॉरिटी को, एसडी केस में भी, और इंफॉर्मेशन कमीशन को। हर ऑर्गेनाइजेशन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह रखेगा। एक सवाल उठा कि भाई ये कैसे होगा? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे होते हैं उनके एम्प्लॉय की संख्या कुल मिला के 10 है। ऐसे भी तो ऑफिस है ना, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, पब्लिक अथॉरिटी है, डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे वो? सारे देश में इतने रखे, डिस्ट्रिक्ट शायद 650 से ज्यादा है, इस समय तो 700 है, कितने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने पोस्ट ऑफिसेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि दे विल एक्ट एज असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी कि आदमी जो है वहां पे जाकर के अपनी एप्लीकेशन दे सकता है या अपील दे सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे एप्रोप्रिएट सीपीआईओ के पास में ट्रांसफर करे। कई जगह ये हो रहा है कि सीपीआईओ ये मान के चल रहा है कि ये असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मेरा असिस्टेंट है। नहीं साहब, वो वहां तो होना ही नहीं चाहिए, तो कहीं बाहर होना है उसका, और उसका काम बड़ा लिमिटेड है। फीस एक्सेप्ट कर लेना, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना, अपील एक्सेप्ट कर लेना और उनको ट्रांसफर कर देना, और उसका रोल खत्म। बस ये बाध्यता है कि विदिन 5 डेज उसे करना है। यदि उसमें गलती करता है तो उसको सजा मिल सकती है उसकी। तो सीपीआईओ या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसका तीसरा क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहब देखिए, ये कहता है कि सीपीआईओ एप्लीकेंट को रीजनेबल असिस्टेंस देगा। एक जगह कहीं और लिखा है इन्होंने सेक्शन 6 में कि यदि कोई आदमी अपनी आरटीआई एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है तो सीपीआईओ उसे हेल्प करेगा अपनी एप्लीकेशन लिखने के लिए।
तो इसी का एक तरह से रिपीटेशन है, यानी कि सीपीआईयू की बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है, उसे गाइड भी करना है एप्लीकेंट को कि भाई तुम क्या लिख। मान लीजिए एक आदमी आया किसी गांव से, उसको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि साहब ये चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा उस बेचारे को, तो सीपीआईयू से ये उम्मीद की जाती है कि वो बताए उसे कि भाई लीजिए आप इसे ऐसा लिख दो, ये मैं दे दूंगा तुम्हें इंफॉर्मेशन। इसका सबसेक्शन 4, 5 का सबसेक्शन 4, वो आपके यहां कभी से अभी किसी ने प्रश्न भी उठाया था। देखिए एक एप्लीकेशन आपके पास में आई, आपको सीपीआईयू बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है इंफॉर्मेशन, मगर आपके अप्रोच में नहीं है, आपकी कस्टडी में नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी की कस्टडी में है। तो ऐसे में क्या करेगा आदमी, कैसे दे इंफॉर्मेशन? एक्ट कहता है कि दिस सीपीआईयू कैन सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी ऑफिसर इन द पब्लिक अथॉरिटी। उसके लिए क्या करेगा वो कि असिस्टेंस लेगा। अब मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन आपके सेक्रेटरी जनरल के पास में उपलब्ध है और कहीं नहीं है, तो वो उनके पास में एक चिट्ठी लिखेगा, चिट्ठी से मेरा मतलब पुराना खत नहीं एक नोट कि सर दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन सोट अंडर दिस आरटीआई एक्ट, एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, इट इज अवेलेबल विद यू, you are requested to supply this information to me so as I may give reply to the RTI in application। किसी की भी असिस्टेंट, सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, बराबर का कलीग, किसी की भी असिस्टेंस ले सकता है सीपीआईयू, बट इट शुड बी रिलेवेंट ऑफिसर, जो भी रिलेवेंट ऑफिसर है उसकी असिस्टेंस ले सकता है। अब देखिए वो आदमी, शुरू में तो ये बहुत हुआ, अरे भाई ये सीपीआईयू है, 25,000 का जुर्माना लगेगा तो इसके ऊपर लगेगा, मुझे क्या करना धंधा। वो उसके ऊपर बैठ गया, सप्लाई नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एक्ट कहता है कि साहब ये जो आदमी है जिसकी असिस्टेंस मांग ली गई, उसे इस एक्ट के लिए सीपीआईयू माना जाएगा। और इसका अर्थ क्या है कि 25,000 रुपए उसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। उसे सीपीआईयू मान लेने का अर्थ है वो सप्लाई नहीं कर रहा है। भाई 30 दिन के अंदर अंदर देनी है ना इंफॉर्मेशन, वो बैठ गया कि मेरा क्या मरेगा तो वो मरेगा, 25,000 रहेंगे तो उसके जाएंगे, बट नो, ही कैन बी आस्क्ड टू डिपॉजिट दैट अमाउंट, ये पेनल्टी वाला जो है उसे सीपीआईयू माना जाएगा। और आमतौर पे अब तो सब लोग आप ये करते ही हैं कि जब कहते हैं कि भाई ये असिस्टेंस चाहिए तो उसे बता भी देते हैं कि सेक्शन 5(4) में ये लिखा हुआ है साहब, एंड यू विल बी ट्रीटेड एज सीपीआईयू फॉर दिस पर्पस, और मुझे दे दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, वे इंफॉर्मेशन मैंने सप्लाई कर दी, दंड किसको मिले? क्योंकि एक्ट कहता है कि जो गलत इंफॉर्मेशन देने पे, झूठी बात कहने पे, उसको विद होल्ड करने पे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब गलत इंफॉर्मेशन उस डिम्ड सीपीआईयू ने दे दी, दंड किसके ऊपर लगे? रिकॉर्ड रखिएगा अपने पास में, उसने सप्लाई की थी, वो डिम्ड सीपीआईयू है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वह दे रहा है, मैंने तो उसे सप्लाई किया है, तो अपने आप को बचाइएगा रिकॉर्ड रखिएगा उसका कि किसी ने क्या इंफॉर्मेशन दी। अच्छा मान लीजिए आप महसूस करते हैं कि भाई इसने गलत दे दी है, यू कैन हेल्प हिम आउट कि साहब जो आपने दिया ये नहीं है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन दूसरी है, बट अल्टीमेटली ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन।
कुछ लोगों को नींद आने लगी है साहब, है जी, उससे लगने लगता है कि भाई मैं बोर करने लगा हूँ। ऐसी बात आती नहीं, खाना खाने के बाद में भी आती। हाँ हाँ जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है सर, हाँ जी, एवरी एमपी इन लोकसभा which does not have any relationship with the public activity. एमपी को आपने एक पीए दिया है जिसकी तनख्वाह आप दे रहे हैं, पब्लिक एक्टिविटी है या नहीं है? उसका नाम क्यों नहीं बताएंगे? बताइए, जरूर बताइए, गलत हो जाएगा नहीं बताना। लोग जो हैं ये पूछ रहे हैं कि साहब बच्चों के नाम पूछ लिए मेरे, तो इसने, अरे भाई आप वो देश घूमने के लिए लेते हैं ना, क्या कहते हैं साहब उसको, एलटीसी लेते हैं और बच्चों का लेते हैं। अरे पब्लिक एक्टिविटी है भाई, उससे पता लग रहा है कि कहाँ उसने ठीक लिया है गलत लिया, क्यों नहीं बताएंगे वो इंफॉर्मेशन? क्या प्राइवेट? और यहाँ तो इस देश में पिताजी का नाम नहीं बताया तो पिताजी की बेइज्जती हो जाती है, और बच्चों का नाम नहीं बताया तो लगता है अरे ये छुपा क्यों रहा है, इसके बच्चे हैं भी या नहीं है ये। तो भाई जो हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ये मेरा बेटा है और आप अब कह रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दीज आर रिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी। देखिए यथासंभव, मेरा अपना कहना ये, बाकी लोगों के दूसरे विचार हो सकते हैं, एज फार एज पॉसिबल गिव द इंफॉर्मेशन। एग्जम्पशंस जो है उन्हें बाद में देखिए कहीं आता है या नहीं आता है, मगर एज फार एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन दीजिए। सर जैसे एक हर डिसीज्ड एमपी की वाइफ को हाँ जी। फैमिली पेंशन मिलती है, हाँ जी, अंडर द लॉ, हाँ जी, वो स्पाउस का नाम पूछ रहा है, हाँ जी, इंडिविजुअल एमपी की हाँ स्पाउस जी। का जो डिसीज्ड है MP, जी जी। उसका नाम भी दे सकते हैं। सर पब्लिक एक्टिविटी है इन्वॉल्व, सरकार से पैसा जा रहा है, आपकी, आप सरकार हैं, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, पता नहीं वो उसकी वाइफ ले रही है या उसकी Sir, मित्र ले रही है। Sir, I just have one query. सर एक क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे मेंबर्स के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ जी। जैसे कुछ पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, रेगुलरली उनके एक्सपेंसेस के बारे में पूछते हैं हाँ कि जी। हाउ मच हाँ जी। एक्सपेंसेस हाँ इनकर्ड। जी, हाँ जी। तो सर उसका कैन वी रिप्लाई? देखिए सवाल तो समझ में आया ना जी, एमपी खर्च कर रहे हैं अपने इलाज पे, उसका ये मत बताइएगा कि बीमारी क्या है। Actually, they ask for the disease also, हाँ, वो मना कर including the दीजिए। expenses. बीमारी मत बताइए, दवाई क्या मिली ये मत बताइए, एक्सपेंसेस जरूर बताइए। दवाई बता सकते हैं सर? नहीं, दवाई नहीं बताएंगे, उससे पता लग जाएगा बीमारी क्या है। Sir, and sir, besides that, they ask for the abroad expenses, Is if it? any incurred for particular period. हाँ If जी। any abroad expenses are occurred during that period, हाँ जी, can we tell that? बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम, फॉर्मूला जो मैंने बताया ना इसमें, ओनली सच पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज नो कनेक्शन विद द पब्लिक एक्टिविटी एंड विच में इंक्लूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। अरे भाई बीमार है, इलाज हुआ है, क्या प्राइवेसी में खत्म कर रहे हैं? सारी दुनिया को पता है, सबने कहा है कि एमपी साहब आप जल्दी ठीक हो जाओ। Sir, जो पूछते हैं वो रिपोर्टर्स ही होते हैं, particular, and we वो- are not supposed to tell in वो- that case. वो क्या होते हैं? रिपोर्टर होते हैं सर, रिपोर्टर हाँ रिपोर्टर होते हैं। सारे हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए, एक्ट इसीलिए तो बना है। अगली बार जब वोट दे तो देखिए उसे कि इसने जो है झूठे बिल तो नहीं दिए थे। अरे भाई खर्चा किया, इसने बताया कि इसके ऊपर 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और बीमारी, अरे हमने तो कभी बीमार देखा ही नहीं, रोज जो है यहाँ पे घूमता रहता था। कहाँ 50,000 करोड़ हुए, इसे दे या नहीं दे वोट? साहब देखिए आरटीआई एक्ट का मकसद भी तो देखिए ना। अच्छा, हाँ जी, अगर डीम्ड सीपीआईओ ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे केस में क्वेश्चन आपने ही बताया, हाँ जी, विदहेल्ड करते हैं, हाँ जी। सीपीआईओ उसमें क्या कर सकता है? देखिए आपने, उन्होंने विद होल्ड कर दी, Yes, sir. आप उन्हें बताइएगा कि साहब ये एक्ट में कहीं एग्जेम्प्टेड नहीं है, जी। इस तरह का दिया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि आप दे दीजिए, तब भी नहीं दे। फिर भी नहीं दे रहे तो आप जो है ना अपने रिकॉर्ड्स में रखिएगा कि साहब ये जो है इसका ये फाइल में रखिए उसे
जुर्माने से बचने के लिए और उसके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए। मैडम पे लगवाइएगा जुर्माना कि साहब, और तब मना कर दीजिएगा कि साहब ये जो है दिस इंफॉर्मेशन वाज सॉट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट ऑफिसर हु रिफ्यूज टू सप्लाई इट। वो सर वेट करते हैं, अब अभी नहीं देते, अपील आएगी तब दे देंगे। 30 दिन के अंदर अंदर देना है साहब। यस सर। मैं आई कैन नॉट टेक रिस्क बियॉन्ड दैट। नहीं सर, वो पहले भी डेल्ड करते हैं हाँ। टफ टाइम पे। हाँ। सर ये अपील की वेट करते हैं, अपील में आएगा तब दे दें। सर देखिए, एक्ट ये नहीं कहता कि अपील में दे दी तो जुर्माना नहीं लगेगा। जुर्माना तो आपके लिए, और जुर्माना बाई दी वे केवल एक व्यक्ति पर लगता है साहब। एक व्यक्ति से मतलब, मेरा मतलब एक ही डेजिग्नेशन होल्ड किए हुए स्टैट्यूटरी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अपीलेट अथॉरिटी पे कुछ नहीं लगता। अच्छा, वो जो उसने के विद होल्ड कर लिया और अपीलेट पे देंगे, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आप अपना तभी दीजिए, डोंट टेक रिस्क। देखिए इस समय आरटीआई एक्ट पे ना तो कमीशन बहुत ज्यादा वो ले रहा है स्ट्रिक्ट वो, मगर पता नहीं है कि कब कौन सा कमीशन ऐसा आएगा जब लोगों को लटकाना शुरू कर दें। लेकिन सर अगर ऐसा सीपीआईओ करेगा, उसका बार बार ट्रांसफर होते रहेंगे सर। सर ट्रांसफर नहीं, उसके ऊपर जुर्माने होते रहेंगे। सीपीआई वो जो है कमीशन ट्रांसफर नहीं करता, वो जुर्माना लगाता है। सर अपना ही ऑफिस कर देगा, ऑफिस दबाव डाल रहे हैं। देखिए वो कर रहे हैं ऑफिस, तो ये तो फिर आपको छूट ही मिल रही है ना, मुक्त हो रहे हैं आप एक एडिशनल काम से, कर दो भैया। नहीं सर, अभी तो आपने सीपीआईओ का इतना बड़ा रोल बताया था, इतनी बातें मगर जब आपको रोल मिले तभी तो रोल अदा करेंगे ना भाई। देखिए कोई आदमी प्रधानमंत्री तब तक ही तो होगा जब तक उसे बनाया हुआ है, हटा दिया तो हटा दिया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर कई बार हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन का केसेस होते हैं कोर्ट्स के अंदर। हाँ जी। और वो पे स्लिप्स हमसे मांगते हैं। हाँ जी। और वो पे स्लिप के अंदर डिटेल मांगते हैं कि डीए कितना है, एचआरए कितना है, या उसकी डिडक्शंस कितनी है। हाँ जी। तो क्या हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? जी जी जी। देखिए साहब, मैं आपको, मैंने 4 का सेक्शन 4 की जिक्र किया था ना, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी का सब क्लोज 10 पढ़ के सुनाता हूं, सुनो साहब। Every public authority shall publish within 120 days from the date of enactment of this act the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation. सर यानी कि आपको वेतन, डीए और कुछ भी जो मिलता है वो पब्लिश करना है। सर वो पब्लिश हमने कर रखा है, बट क्या है वो उनका डिटेल्स हमसे सीख करते हैं। सर डिटेल्स ही तो इसने कहा है, क्या दिक्कत है इसमें? कि सर मतलब आपको क्या बाधा लगती है कि नहीं देना चाहिए? डीए कितना है, एचआरए कितना अरे है? डीए जो है ये बताओ कि भाई इतना बेसिक पे है, इतना डीए है, ये तो सबको पता है। सरकार जो है हर महीने, हर 6 महीने बाद लिख सर, देती ठीक है है, कि सर। डीए इतने हो गया। ठीक है सर, पर जो डिडक्शंस हैं उसकी एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल, डिडक्शंस को मना कर दीजिए आप। क्योंकि सर डिडक्शंस तो उसकी अपनी पर्सनल हो गई। हाँ डिडक्शंस को जो है, क्योंकि वो पता नहीं किस मकसद के लिए। देखिए ऐसा है, डिडक्शंस जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में इन्फ्रिंजमेंट उसके राइट्स को कर सकता है। कई बैंक से उसने लोन ले रखा है, आपसे लोन ले रखा है, कुछ कर रखा है जिसमें पब्लिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है किसी, और उसकी प्राइवेसी में इंक्लूड कर रहे हैं आप, प्राइवेसी में इंक्लूड। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इस आरटीआई एक्ट की खूबी ये है कि एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है। एवरीवेयर यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि इस इंफॉर्मेशन को दे या नहीं दे। नहीं दे तो क्या कारण होगा? जब आप मना करते हैं तो आपको, आप बाध्य है ये कारण बताने के लिए कि क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इसमें जैसे उसने कहा कि डिडक्शंस, कि भाई डिडक्शंस में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इट वुड इंक्लूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। वो कहां क्या खर्च कर रहा है वो बताने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूं। कोई नहीं, अभी बंद हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे चलें जी। अच्छा साहब, अब जो है हम आते हैं साहब एप्लीकेशन पे।
ये तो बहुत देर तक बोल रहा है साहब। चलो, इसे साइलेंट पे भी तो कर देते हैं ना जी कुछ। चलो कोई नहीं। ये एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या उस क्षेत्र की ऑफिशियल लैंग्वेज। दिल्ली में कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो हिंदी में लिख सकता है एप्लीकेशन, अंग्रेजी में लिख सकता है, पंजाबी में लिख सकता है, उर्दू में लिख सकता है। यही ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना जी यहाँ की, दिल्ली की। उसने ये नहीं कहा कि केंद्रीय ऑफिस में या जहां पे जहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें वो एप्लीकेशन दे सकता है। कोई आदमी दिल्ली में तमिल में एप्लीकेशन दे रहा है तो गलत कर रहा है। मेरे पास में साधन ही नहीं है कि मैं उसे ट्रांसलेट करा किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में वो दे जो यहाँ की है। तमिलनाडु में कोई ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, वो तमिल में एप्लीकेशन दे सकता है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहां पे कोई पंजाबी में दे तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि ये कहने का सर मैंने एप्लीकेशन दे दी और मुझे जवाब नहीं मिला। ये सीपीआईओ को देनी है या असिस्टेंट सीपीआईओ को। जब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देता है वो, तो एक ऐसा आदमी जो सीपीआईओ नहीं है, प्रावधान करता है एक्ट के एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जल्दी से जल्दी उस एप्लीकेशन को किसको ट्रांसफर कर देगा, पीआईओ को कर देगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लेगा। यदि 5 दिन से ज्यादा लेता है तो ही इज ऑल्सो डीम्ड सीपीआईओ टू दैट एक्सटेंट। जो टाइम लगा रहा है उसकी वजह से डिले होगा रिप्लाई, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो 5 दिन के अंदर अंदर उसे दे देना चाहिए सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उर्दू या गुरुमुखी ऑफिशियल लैंग्वेज है दिल्ली की? मैडम ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में है ऑफिशियल। बट सर ये ट्रांसलेटर तो होते नहीं है जैसे गुरुमुखी या देखिए उर्दू मैडम, के लिए। ये चीजें जो है ना, इतना तो देखिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। गुरुमुखी भाई ये जो है दिल्ली सरकार से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हर इंडिविजुअल को बताए कि यहाँ की पंजाबी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके लिए तो नोटिफिकेशन है, और गजट नोटिफिकेशन का एक मायने होता है कि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू एवरीबॉडी। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम है। कानून का एक सिद्धांत है ना, नोबडी कैन टेक ए स्टैंड दैट आई डू नॉट नो इट। हाँ, इग्नोरेंस ऑल्सो इज नो एक्सक्यूज। इस हिसाब से तो सर गुरुमुखी और उर्दू को एंटरटेन करना होगा हम लोगों को। हाँ जी, करना होगा। हाँ जी, लोकसभा में सीपीआईओ भी है, डिप्टी सीपीआई। डिप्टी मीन सीएपीआईओ। हाँ जी, अगर कोई एप्लीकेंट सीएपीआईओ को एड्रेस करता है हाँ जी, तो वी आर इन सेम ऑफिस सेम लोकेशन, हाँ जी। तो 5 डेज का उस पर भी अप्लाई करता है। नहीं जी, उसके ऊपर देखिए, आपने जो ऑफिस में बैठाए हुए आदमी को एपीआईओ कह दिया है वही बेसिकली गलत काम किया है। जी जी, भाई ये तो ये कह रहा है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील में, तालुका में, वहां पे आप उसे बनाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो केवल पीआईओ होता है। तो देखिए, गलती के लिए तो ये नहीं कह सकते मैं तो गलती करूंगा। तो इसका मतलब 5 डेज की मोहलत। कोई मोहलत नहीं है, कोई मोहलत नहीं है। सर कोई आरटीआई जैसे आती है कि आपके ऑफिस की मैं फला यूनिट को इंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ 5-6 घंटे में, हाँ जी, राइटिंग में आती है। किस यूनिट को कैसे कैसे, जैसे एक उदाहरण बताएं आप। जैसे एमपीएस की सर्विस ब्रांच है, हाँ जी, मैं उसकी 5-6 घंटे उसकी ब्रांच को मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। जी 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 जी, क्या चीज इंस्पेक्ट करेंगे? फंक्शनिंग ब्रांच की फंक्शन, वर्क क्या है? वर्क को कैसे इंस्पेक्ट असेंबली करने का बनाते हो तुम, कैसे उनको अकोमोडेशन अलॉट करते हो? नहीं सर, ये कोई वर्क नहीं है। वर्क तो एक हमने उदाहरण बताया ना, भाई जैसे सीपीडब्ल्यूडी मकान बना रही है तो वर्क हो रहा है।
अब जो हर चीज को तो वर्क नहीं कह सकता, वर्क का जो है एक डेफिनेट अर्थ है सर। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क का मतलब प्रोसेस नहीं है। क्या प्रोसीजर देखेंगे फिर तो आकर के वो ये भी कहेगा कि अब कुछ दिन में अब ये काम करके देखूंगा, और ये काम किया तो प्रोसीजर नहीं है इंस्पेक्टर। हाँ नहीं, प्रोसीजर क्या इंस्पेक्ट करेंगे? प्रोसीजर आप लिख करके उन्हें बता देंगे। देखिए सेक्शन 4 के तहत वो दे रखा है कि भाई आप बताएंगे, पब्लिश करेंगे, उसका इंस्पेक्शन का कहीं कोई मामला नहीं। अच्छा साहब, एक तो जो ACPIO वाला आपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कहा, वो उसे आपके अपने सलाह दीजिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई असिस्टेंट PIO इनको आप PIO बना दीजिए, जितने चाहे उतने बना सकते हैं, मगर इन्हें APIO मत कहिएगा। अच्छा साहब, एक एप्लीकेशन आई आपके पास में, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कौन सा काम कौन सी जगह हो रहा है। बहुत सारे काम है ना। एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, देखिए एक एप्लीकेशन आई RTI पे, एप्लीकेशन भेजी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उन्होंने जवाब दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया। अभी जिस टेक्सचर का वो करूंगा मैं, उसे ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। उन्होंने वापस भेज दिया इन्हें कि आपके पास में आपका काम है, आप ही कीजिए। इंफॉर्मेशन गई नहीं, 25,000 रुपए जुर्माना CIC ने किया, इसके PIO पे भी और उसके PIO पे भी। इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास भी थी, उसके पास में भी थी, दोनों ने ही इसे डिनाई किया, तो 25,000 तुम दे जाओ, 25,000 तुम दे जाओ। तो जो मतलब काम का पता होना, अभी ऑफिस को पता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो दोनों रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्हें पता नहीं है कि किसका काम है। आम आदमी को कैसे पता होगा? बेचारा वो तो खोज करता है, थोड़ी सी मैडम, थोड़ी सी खोज करता है वो, और खोज करके आपके पास में एप्लीकेशन दे देता है। वो आपको रिलेट नहीं करती। एक्ट कहता है भाई इसे वापस मत कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए, इसे आप एप्रोप्रिएट पब्लिक ऑथोरिटी में ट्रांसफर कीजिए, इमीडिएटली कीजिए, और 5 दिन से ज्यादा बिल्कुल मत कीजिए। विद इन 5 days ट्रांसफर इट टू द अदर पब्लिक relevant public authority and inform the applicant that your application has been sent to such and such organization. ठीक है ना सर? अच्छा, लोग कहते हैं अब तो के सब कोई टाइम का वो नहीं रख रहे, क्योंकि CIC उतना कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, उस वजह से। नहीं तो 5 दिन से ज्यादा टाइम लेने के बाद में जुर्माने के अधिकारी हो जाता है वो पब्लिक ऑथोरिटी का CPIO जिसके पास में एप्लीकेशन पड़ी रही। देखिए विद इन 30 डेज का टाइम मिलता है CPIO को रिप्लाई करने के लिए। अभी सेक्शन 7 में देखेंगे अब उसको तो जिस दिन एप्लीकेशन मिले उससे 30 दिन लेगा। आपने उसे 1 महीने बाद भेजा था, जो आपने 25 दिन ज्यादा खर्च किए, उसकी किसकी गलती थी? भेजने वाले की। जुर्माना किसके ऊपर लगेगा? उसी के ऊपर तो लगेगा, जो जवाब दे रहा है उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो प्लीज उस दिन का वेट मत कीजिए जब CIC स्ट्रिक्ट होगा। अभी से आप जो अपने काम को एक्ट के मुताबिक कीजिएगा। ट्रांसफर इट विद इन 5 days। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जिसमें 20 जगह की इंफॉर्मेशन मांग रखी है। आती है ना ऐसी एप्लीकेशन, और भाई किस किस को ट्रांसफर करें। DOPT ने एक सर्कुलर निकाला, भाई एक्ट नहीं, अमेंडमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, कोई रूल्स नहीं बनाए, एक इंस्ट्रक्शंस निकाली कि भाई ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि वो एप्लीकेंट कुछ भी लिख दे उसमें। उसने कहा कि भाई यदि 2 और रिलेटेड है आपका ऑर्गेनाइजेशन और 2 और या केवल 2 और, तो आप ट्रांसफर कीजिए, और नहीं तो उससे मना कर दीजिएगा कि आपने गलत भेजा है और ये लोग रिलेवेंट लोग हैं, उनको आप अपनी अलग अलग एप्लीकेशन भेजिएगा।
उसे CIC ने भी कहा कि भाई ठीक है, ये बात इतना ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एप्लीकेंट की भी तो कुछ है ना. He has to specify he has to address the application to the appropriate public authority, CPIO of the public authority. गलती हो सकती है, मगर आप सारा का सारा एक ही आदमी के पास में भेज दें तो वो जी साहब. सर, एक ट्रांसफ़र करने के केस में मैंने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, मैं कैपीओ हूँ, मोहम्मद सलामुद्दीन सर. एक एप्लीकेंट ने 1-1.5 साल पहले जो है कि एक इंफॉर्मेशन मांगी थी एक एक्ट के तहत, इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट 2008. तो हम लोगों ने बेल ऑफिस और लेजिस्लेटिव सेक्शन में अपने इंफॉर्मेशन मांगी, तो इस तरह का कोई एक्ट इंडिया में है ही नहीं. फिर भी उसने इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो उस एप्लीकेशन को हम लोगों ने ओरिजिनली रिटर्न बैक कर दिया था एप्लीकेंट को, ये कहते हुए कि इस तरह का कोई एक्ट है ही नहीं. फिर वो CIC में मैटर चला गया. CIC में अभी हियरिंग हुई अभी हाल ही में, तो CIC ने डिसीजन ये दे दिया हम लोग के प्लीड करने के बावजूद कि नहीं, आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन इसको अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी में ट्रांसफ़र कीजिए और इंफॉर्मेशन सीख करके फिर एप्लीकेंट को प्रोवाइड कीजिए विदिन 15 डेज. तो सर हम लोगों ने तो अब फॉर द सेक, चूँकि CIC बस इसमें एक छोटी सी गलती हुई तो उसको सोशल जस्टिस और मैंडेटरी पर जहाँ समझ में आया हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, लेकिन हमें नहीं लगता जब एक्ट है ही नहीं सर तो इन्फॉर्मेशन आएगा कहाँ से. देखिए, तो आप इतने में क्या करें हम लोग? सर, आप इतने श्योर हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. आपने जो ट्रांसफर किया या जो ये उस एप्लीकेशन को वापस भेजा, बस गलती वहां हो गई. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने गलती की, पर वहां पे हो गई अनजाने में. जो RTI एप्लीकेशन है वो तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई जब आपके पास में पहुंच गया. आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, वापस कैसे भेज सकते हैं? उस लाते समय भी CPR दो तो क्या जा रहा है? सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, डिक्लेयर हो चुका है, कोशिश करो, बच गया वेरी गुड, नहीं तो मरा तो पड़ा ही है. इसमें दिक्कत क्या है? आपकी कोशिश, नॉलेज थी, CPR की नॉलेज थी, फर्स्ट एड नॉलेज कंडक्टर को कहते हैं जब से DTC बनी है कंडक्टर को फर्स्ट एड कंपलसरी है, नॉलेज थी. उन्होंने कैजुअलिटी के बाद फर्स्ट पे बिठाया बच्चे को, 10-12 मिनट ही CPR दिया था, बच्चे की धड़कन चालू, दोबारा अंदर एडमिट कराएगा. बच्चा आज भी जीवित है. अभी देखिए बीमारी है, पेशेंट जीवित है, मगर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है डॉक्टर कहता है सॉरी ये नहीं है. पैरामेडिकल स्टाफ जो एम्बुलेंस के अंदर होते हैं उन्होंने कहा अभी तक तो था, 10 मिनट पहले तक तो था, अब कैसे मर गया? तो पैरामेडिकल स्टाफ जो एम्बुलेंस के अंदर होते हैं उन्होंने खुद ने स्ट्रेचर के ऊपर ही खड़े होकर CPR उस व्यक्ति को दिया. उसे पता था अभी बन रही है. ये मशीन है सर, इसको बंद हुए जितना ज्यादा समय हुआ है उतना ही ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी. और अगर ये मशीन अभी 2 मिनट पहले बंद हुई है, एक व्यक्ति सीने में दर्द हुआ, गिर गया, बेहोश हो गया, इसे 2 मिनट नहीं लगेंगे CPR से खड़ा करने. मगर जो उतारा गया है फांसी के फंदे से, कितनी देर पहले सांसें रुकी थी, वहां मेहनत बहुत जरूरी है. कोशिश करना, और देखो घर में नॉलेज देना, फैमिली को बताना किस तरीके से CPR दिया जाता है. अगर कभी भी किसी को लेटा कर मत बताना, लेटा लेना, नहीं तो एक पिलो लेना, उस पर आप ये प्रेशर बना के दिखाना किस तरीके से. पूरा प्रैक्टिकल लाइव डमी पर कर सकते हैं, मगर जो चेस्ट कंप्रेशन है वो लाइव डमी पर नहीं करना है. ठीक है जी. तो ये जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है इसमें कोई डाउट समझ आया सभी को? देखिए अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ. वो भी मांगता है, उसमें देने में क्या हर्ज मानते हैं आप?
नॉमिनेशन हाँ जी, सीक्रेट ना, नहीं नॉमिनेशन कैसे सीक्रेट है सर? बैंक्स में जैसे नॉमिनेशन होता सर देखिए, आस्क वेदर टू डिस्क्लोज ऑफ सर, इन एक पासबुक और चीज- नॉट। एक चीज देखिएगा, क्या बैंक से कंपेयर करेंगे आप लोकसभा सेक्रेटरीट को या लोकसभा को? वहां पे सिक्रेसी क्या है और यहाँ पे सिक्रेसी क्या है? देखिए एमपीज के बारे में तो ये कह रहे हैं उसने डकैती डाली है, तो लिखिए यहाँ पे कि डाके डाली और उसे पब्लिश कीजिए, अखबार में छापिए। हो रहा है नहीं हो रहा है? ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप कह रहे हैं नॉमिनेशन उस कोई ऐसा आदमी दे रहा है जो दे ही नहीं सकता, कोई नॉमिनेट कर ही नहीं सकता, तो उसका इनवैलिड होगा नहीं होगा? ये तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो दीजिए उसे, एक्सपोज कीजिए सबको जो गलत काम कर रहे हैं। एमपीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनका तो मैं बहुत इज्जत करता हूं साहब, मगर जिसका भी है कोई गलत काम कर रहा है तो एक्सपोज होने दीजिए उसे। भैया वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। हेलो, मैम आपका प्रश्न में प्रोविजन तो है उसका opinion जी 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 मैडम, आपकी इजाजत हो तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूं? आपके आने से मुझे डर लगने लगा कि अब खत्म करना है मुझे। कि आपको इतने सवाल ना पूछने कि आप बहुत ही थक जाए। नहीं, सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत आनंद आता है। देखिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, मैंने कहा था कि कुछ डेफिनेशंस को जरूरत पड़ी तो बाद में डिस्कस करूंगा, उनमें से एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी है। थर्ड पार्टी का अर्थ क्या है? एक तो अर्थ देख ले हम, एनीबडी अदर देन एप्लीकेंट इंक्लूडिंग द पब्लिक अथॉरिटी, ये थर्ड पार्टी की डेफिनेशन है। और थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन देने के बारे में जो प्रावधान है, कुछ तो सेक्शन 8 में है और विस्तार से दिया है सेक्शन 11 में। जो आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मांगिए, वो सेक्शन 11 का प्रोविजन है। उसमें वो कहता है कि यदि कोई थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, कौन सी इंफॉर्मेशन? जिसे थर्ड पार्टी ने कॉन्फिडेंशियल माना हो, जो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को रिलेट करती है या थर्ड पार्टी के द्वारा सप्लाई की हुई है। कैसी इंफॉर्मेशन? जिसे थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंशियल मानती है। तो उस इंफॉर्मेशन को देने से पहले उस व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से पूछा जाएगा कि माई बाप इसे दे दे या ना दे दे। और कब पूछा जाएगा? यदि सीपीआईओ, उसके पास में 2 ऑप्शंस है, वो उसने टोटल एग्जामिन किया और उसने कहा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, एग्जाम्पशंस में आ रही है, तो उसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। यदि वो ये तय करता है सीपीआईओ कि इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, तब वो थर्ड पार्टी को लिखेगा कि साहब मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। यदि आपको कहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो 10 दिन के अंदर अंदर मुझे बता दीजिए। 10 दिन के अंदर यदि नहीं आता है तो उसकी स्वीकृति हो गई, मैं दे दूंगा इंफॉर्मेशन। 10 दिन में उसने ऑब्जेक्ट किया तो मैं फिर एग्जामिन करूंगा उसके ऑब्जेक्शन को। ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं दीजिएगा, कारण बताइए क्यों नहीं दे सकते। मैं एग्जामिन करूंगा और एग्जामिन करने के बाद में मेरे पास में 2 ऑप्शंस आ सकते हैं कि मैं अब इंफॉर्मेशन ना दूं, उसके ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मुझे फिर कुछ नहीं करना, एप्लीकेंट को रिप्लाई देना है, इट कांट बी डिस्क्लोज्ड फॉर दिस रीजन। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, मैं कन्विंस्ड नहीं हूं, इंफॉर्मेशन देनी है, मैं उसे बताऊंगा कि आई एम गोइंग टू disclose this information, but you have a right to go to the appellate authority. वो अपील करे, appellate authority डिसाइड करेगी। appellate authority भी यदि मान लीजिए डिसाइड करती है कि मैं इसे दे दें, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे, then he has a right to go to CIC in appeal, वहां डिसाइड होगा, तब वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जी सर।
सर एम्प्लॉय ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल के रूप में तो डिक्लेयर नहीं करता है हमारे जी जी, तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? तो पूछूंगा क्यों मैंने तो कहा इफ इट इज कॉन्फिडेंशियल और इफ ही कंसीडर्स इट टू बी कॉन्फिडेंशियल ओनली देन दिस प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। सर लैंग्वेज बड़ी स्पष्ट है उसकी, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। क्यों ऐसा तो कुछ Where a central public information officer intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party. बड़ा मोटा लिखा है सर ये सब पढ़ा नहीं हमने। देखिए यही तो दिक्कत होती है ना कि हमने बस ये देख लिया कि GRA में दे रखा है कि उससे इंफॉर्मेशन लीजिए, पर कब लेना है, कब उसका वो करना है, एग्जामिन करना है, वो तब करना है। वैसे बाय द वे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्फिडेंशियल मांगता है या नहीं मांगता। सब में मांगिए, बट टू मी इट अपीयर्स टू बी वेरी एब्सर्ड। फिर तो कोई पूछे कि भाई मेरा नाम क्या है, कि साहब इससे पूछो कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या नहीं। नो, एक्ट कह रहा है कि इफ इट हैज बीन ट्रीटेड बाय द पर्सन थर्ड पार्टी एज कॉन्फिडेंशियल, इन दैट केस दिस प्रोसीजर इज टू बी। हाँ जी, जब इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे मैं बताऊं आपको, देखिए जी इंटर्न से कुछ वो मंगाते हैं रिसर्च पेपर सर, इंटर्न रखने से पहले। हाँ जी, तो पर्सनल कैपेसिटी में लिख के देते हैं। हाँ और RTI में जिनका सिलेक्शन नहीं होता, हाँ जी, वो लोग मांगते हैं कि इसका रिसर्च पेपर क्या था, क्या सबमिट किया, वो हमें दे दीजिए। हाँ जी, तो हम क्या इसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे सर? सर इसमें जो है ना थर्ड पार्टी में आप सेक्शन 9 लगाइए, उस पर जो उसने डॉक्यूमेंट लिखा है उस पर तो कॉपीराइट है उसका। यस सर। और कॉपीराइट जो है वो किसी को, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो तो उस पर तो कॉपीराइट होता नहीं है, पर इंडिविजुअल ने दिया है उसको तो कॉपीराइट है ना उसका, उसे डिस्क्लोज नहीं करेगा। सर वो तो रिसर्च पेपर कॉपीराइट नहीं रहेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सबमिट होता है BPSC में। सर देखिए ये जो है कॉपीराइट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में तो सारी की सारी रिसर्च होती है। रिसर्च जो है BPSC में सबमिट करनी पड़ती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको हायर किया जाता है इंटर्न्स। हाँ जी, तो इन दैट वे वो पब्लिक डोमेन में आगे इन्फॉर्मेशन डिनाई नहीं हो सकती। सर देखिए ऐसा है, जो ये कहता है ना एक्ट, जो सेक्शन 11 कहता है, नहीं 9 कहता है, वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के अतिरिक्त यदि कहीं कोई किसी पे कॉपीराइट है तो उसको नहीं दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पास में आ गया उसके ऊपर का कॉपीराइट खत्म हो गया। सर ऐसा कहीं आपने लिख के दिया है कि आपका कॉपीराइट नहीं होगा, हमारा होगा ये कॉपीराइट? ये सर के शायद टर्म्स में है जो शायद मत कहिएगा, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आपने उससे खरीद लिया है तो बात दूसरी है। कोई मिसयूज कर राइट पे लेते हैं उनको हायर करते हैं इंटर्न्स को। हाँ जी, इंटर्न को राइट आप करते हैं, मगर जो वो काम कर रहा है आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो डॉक्यूमेंट को नहीं पे करने से कोई एम्प्लॉय नहीं हो जाता। सब जब मैंने वो PhD करनी चाहिए थी तो मुझे फेलोशिप मिलना था, मुझे कहीं किसी ने सरकारी नौकर नहीं मांगा, सरकार पे कर रही थी मगर सरकारी नौकर नहीं हो गया था मैं। इंटर्नशिप जो है नौकरी नहीं है। अच्छा सर एक छोटा टर्म्स में है तो बात दूसरी है। सर एक स्मॉल क्वेरी और थी, हाँ हमारे पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन रखी है सर, वेबसाइट पे जैसे आपने सेक्शन 4 को कोट किया, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, मतलब कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, हाँ जी, एप्लीकेंट सर्टिफाइड कॉपी मांगता है, हाँ जी, तो आर वी बाउंड टू? yes sir, section 7(9) I talked about that. He has a right to have information before whichever he wants to have. वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन जिस फॉर्म में चाह रहे हैं उस फॉर्म में देने के लिए आप बात थी, सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए बात थी। सर इसी से जुड़ा एक पॉइंट और है। हाँ जी, कि जो जैसे पार्लियामेंट लाइब्रेरी में बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, हाँ जी, एक्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, हाँ जी, एप्लीकेंट्स कई बार उन एक्ट्स की सर्टिफाइड कॉपी मांगता है जो एज ए लाइब्रेरी या होल्डिंग में होती है।
तो उस केस में क्योंकि इंफॉर्मेशन का ओरिजिनल सोर्स नहीं है, हमारे पास होल्डिंग है, तो क्या हम उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हैं? साहब ये कितना बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने कि आपकी लाइब्रेरी में सारे किताबें रखी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, आपसे मांग रहा है इंफॉर्मेशन। एक्ट कहता है कि इफ द इंफॉर्मेशन relates to more closely relates to any other organization, application shall be transferred to that. आपसे तो रिलेटेड ही नहीं है इंफॉर्मेशन वो, आपने तो एक किताब खरीद के रख ली है, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंसेज और समथिंग लाइक दैट, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद दैट इंफॉर्मेशन, दे विल डिसाइड। आपको तो पता ही नहीं है कि ये सीक्रेट है या नहीं है, आपको ज्ञान क्या है उसका, लाइब्रेरियन को ज्ञान होगा साहब इसका कि इसकी क्या वो है। भाई आप किताब बांटते ही तो हैं, सबके वो ज्ञाता थोड़े ही है, तो यू कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन दैट, दिस एप्लीकेशन गो टू दी एप्रोप्रिएट पब्लिक ऑथोरिटी। ये सर ये करें अगर वो दूसरी ब्रांच से रिलेटेड सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कहना ये है कि जैसे कोई पब्लिकेशन है जो ओरिजिनल सोर्स से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कोई एक्ट बनाया, हाँ जी, और उस एक्ट की ऑथेंटिकेटेड कॉपी वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी से मांगता है, हाँ जी, तो क्या हम उसको ऑथेंटिकेट करके देने के राइट में है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिलेटेड ही नहीं है उससे, मैं यही पूछ रहा हूँ। आप केवल कस्टोडियन हैं, आप तो कस्टोडियन भी किस चीज के, जो किताब बाजार में छप गई, तो who is closely related with that subject, Ministry of Law, they will give that. जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसे बहुत सारी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई हैं और वो पेड बेसिस पे पेजेस के कॉस्ट भी रिकवर करके उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की गई है, तो इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन इस मुद्दे पे आपसे पूछा है। देखिए दे दी कोई बुरी बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात है, वायलेशन तो नहीं हुआ सर कॉपीराइट का, मगर ये है कि भाई व्हाट लॉ सेज, आपको पता है नहीं, देखिए कई बार कुछ पता नहीं होगा हमें, लेटेस्ट क्या है वो नहीं पता होगा, हो सकता है कि कल ही एक अमेंडमेंट हो गया हो, जो आप ऑथेंटिकेटेड कॉपी दे रहे हैं वो हो सकता है गलत चली जाए, और फिर वो कह के साहब इन्होंने मुझे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, गलत इन्फॉर्मेशन दी, और गलत इन्फॉर्मेशन पे 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। Okay friends, now I think, one second, we will just conclude and we will take last 3 questions only. So now you can ask. सर अगर किसी रीजन से आरटीआई का रिप्लाई गलत चला जाता है, हाँ जी, तो उस केस में उसे सुधारा कैसे जा सकता है? सपोज करो एप्लीकेंट ने उसे न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दिया, हाँ तो उस केस में कैसे बचे? देखिए जैसे ही आपको पता लगता है कि गलत चली गई है, वापस बताइए इन्फॉर्मेशन कि भाई जो पहले आपको दी थी इन्फॉर्मेशन वो गलत थी, ये ठीक इन्फॉर्मेशन है। और एक है जी दूसरा बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे एक्शंस के लिए सीपीआईओ जिम्मेदार है, तो वो देते वक्त ही बड़ा सावधान रहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, और यदि गलती से चली गई है तो फौरन उसे सुधारिए कि भाई ये गलत चली गई है और उसे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसी इन्फॉर्मेशन से। जी सर आइडेंटिकल एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा दिक्कत होता है, रिजेक्ट का ऑप्शन वापस रिपीट करेंगे आप? आइडेंटिकल एप्लीकेशन जो आती है, हाँ वो कैसे कंसिडर होगा? सोर्स सेम होना चाहिए या फिर कंटेंट सेम है? एप्लीकेंट तो सेम है, बट क्या होता है डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटी से रिपीट आते ही है, डिस्पोजल होने के बाद भी आते रहते हैं, तो उसको हम रिजेक्ट करें या फिर दोबारा डील करें? नहीं, किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से आ रही है आपके पास में, उसने एप्लीकेंट ने वहां पे भी दी, उसको भी दी, उसको भी दी, उसकी कॉपी अब 10 जगह से आपके पास में आ रही है, यही है ना? हाँ। तो आपको तो एक ही रिप्लाई देना है ना, बाकी जगह तो ये कि भाई उसने तो एक ही एप्लीकेशन 10 जगह दे दी है ना, उसके पास पहुंच ऑनलाइन गया। में होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि वो दोबारा डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू आती है, हाँ। तो उधर में एक ऑप्शन है रिजेक्ट का, डुप्लीकेट एंट्री, तो उसका रिजेक्ट मत कॉन्सेप्ट कीजिए, क्या है? रिजेक्ट मत कीजिए, जो आपने पहले दिया उसे क्लिक करके पहुंच जाएगा ना उसके पास में। जैसे ओरिजिनल तो मान लीजिए हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करी है, बट वो ऑलरेडी वहीं से आ रही है, तो रिप्लाई तो सेम नहीं जा सकता, क्योंकि हमने उसमें तो लिखा है कि हम आप वहाँ तो ट्रांसफर तब करेंगे जब आपसे रिलेटेड नहीं है ना इन्फॉर्मेशन,
तो आप क्या जवाब देंगे? फिर तो ट्रांसफर ही करेंगे ना आप उसे। नहीं, जैसे एप्लीकेशन आया है उसका पार्शियली हमसे रिलेटेड है, पार्शियली किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो हमने अपना पार्ट दे दिया और उसको ये भी इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे अथॉरिटी के पास है। हाँ जी, हाँ जी। बट अब हमारे पास डिफरेंट अथॉरिटी से आ रहा है, अब वहाँ से भी आ रहा है जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया है, अब उसको हम कैसे डील करें? रिप्लाई तो वो हम ऑलरेडी एक भेज चुके हैं उसको। मान लीजिए आप एप्लीकेंट हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि उस सवाल का जवाब मिल जाए जो आपसे रिलेटेड है? करेक्ट। चला गया आपके पास में आ गया, अब आप कोई समस्या खड़ी करेंगे उस सवाल के बारे में? CIC क्या करेगा उसके बारे में? चला गया। सेम एप्लीकेंट है, सेम एप्लीकेशन है, 18 टाइम्स रिपीट करती है। हाँ जी। 18 टाइम्स हमें उसमें शो कर रहे हैं कि इसने फी भी पे की है। हाँ जी। आर वी बाउंड टू रिप्लाई? नहीं जी, एप्लीकेशन CIC ने इसके बारे में डिसीजन दे रखा है ऑलरेडी कि भाई रिपीटेड वो आ रहे हैं तो आप सिंपली उसे सर कई केसेस में वो अपील भी कर देता है। अब सर एक में तो मान जाता, वो दूसरे जब केस में अपील करेगा तो अपीलेट अथॉरिटी आपकी भी रिजेक्ट कर देगा और CIC जब जाए तो CIC को आप उसके डिसीजन दिखा दीजिएगा कि साहब आपने कह रखा है कि ये बार बार वैसे ही कर रहा है तो उसे कोई कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। Friends, I will request you that we have arranged tea also in banquet hall, so informally also sir will join us. You can ask many of your questions there also. So any more questions now? One last question we can take if you have. एक्सक्यूज मी सर, सर एक जैसे BPL एप्लीकेंट होता है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ BPL सर वो इतने सारा इन्फॉर्मेशन मांग लेता है, हम उसको 7-9 कोड भी कर देते कि वॉल्यूमिनस है, आके इंस्पेक्ट करे, पर उस केस में वो कहता है मैं BPL हूँ, मैं इतनी दूर से आ नहीं सकता और मुझे हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए। उस केस में हम क्या करें सर? देखिए हमने ये तो जिम्मेदारी लेनी ली है कि भाई तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। मेरे रिसोर्सेज जो है, मेरा एक्ट मुझसे ये कह रहा है कि यदि पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्सेज डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट होते हैं तो उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जिस फॉर्म में मांगी है। इंस्पेक्शन भी एक तरीका है, इंस्पेक्शन का तरीका अब भाई देखिए सारी चीज़ों जो है वो मैं तुम्हारे मुताबिक तो चल नहीं सकता, उससे यही कहेंगे ना हम, नोट इन सो मेनी वर्ड्स। अब उसकी मर्जी है वो आए या ना आए। So I request all the participants नहीं है to कि join us BPL है for तो उसे banquet प्रोवाइड hall. करवानी नहीं है। BPL का मतलब ये नहीं है कि उसने खरीद लिया देश को। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for joining and making things very clear to us. Thank you.